یہ اعراب کس وجہ سے ہے، کن وجوہات کی بنیاد پر ہے جن کی وجہ سے اس کو عامل کہتے ہیں؟ زیر کسرہ زبر جو یا حالت رفع میں واو حالت رفع میں الف، تو اس کا کوئی عامل ہوگا، اس پر کوئی عمل کرنے والا ہوگا۔ آپ نے اعراب میں دیکھا ہے کوئی حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ، تو وہاں پہ تو ضمنی طور پر مطلب یہ کہ یہ بھی بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ یہاں پر جو رفع ہوا وہ اس کی وجہ سے ہے، یہ عامل ہے، یہاں پہ جو فتح ہوا وہ اس کی وجہ سے ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ بات ذہن میں آ بھی چکی ہے۔ اب انہی کو یہاں پہ بیان کرنے جا رہے ہیں، عوامل کو۔ عوامل جمع ہے عامل کی، عامل کا مطلب عمل کرنے والا۔ جہاں زیدن میں زید تو فاعل ہے، سمجھنا معمول ہے، اس کا عامل کون ہے؟ جہاں ہے۔ رأیت زیدن میں رأیت کیا ہے؟ عامل ہے۔ مررت بے زیدن میں با کیا ہے؟ عامل ہے۔ اب وہی عوامل اعراب جس کی وجہ سے اعراب میں تغیر و تبدل چینجنگ ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے، اسی اعراب کے عوامل کو، انہی اعراب کے عوامل کو بیان کر رہے ہیں، چاہے وہ اعراب بالحرکت ہو یا اعراب بالحروف ہو، ٹھیک ہے؟ تو عوامل اعراب کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فصل بدا کے عوامل اعراب پر دو قسمت جان لیجئے کہ عوامل اعراب دو قسم پر ہے۔ عوامل اعراب یعنی اعراب کے عوامل دو قسم پر ہے، ایک ہے لفظی اور ایک ہے معنوی، لفظی و معنوی۔ اب اتنا یاد رکھیے گا کہ عوامل اعراب دو قسم پر ہے، لفظی اور معنوی۔ لفظی کا مطلب ہے کہ دیکھا جائے گا پڑھا جائے گا، معنوی کا مطلب دیکھا نہیں جائے گا پڑھا نہیں جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن اس کا عمل ظاہر ہوگا، وہ جب معنوی کا بیان ہوگا تبھی جا کر کے بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ابھی یہاں پہ لفظی عوامل سے بحث ہے، فرماتے ہیں لفظی برس قسمت، عوامل لفظی تین قسم پر ہے، لفظی برس قسمت عوامل لفظی تین قسم پر ہے، حروف و افعال و اسماء، حروف اور افعال اور اسماء، یہ تین قسم کے، یہ تینوں قسم ہیں۔ کون ہے؟ یعنی عمل کرنے والے حروف بھی ہوتے ہیں، عمل کرنے والے افعال بھی ہوتے ہیں، عمل کرنے والے اسماء بھی ہوتے ہیں۔ حروف حرف کی جمع ہے، افعال فعل کی جمع ہے، اسماء اسم کی جمع ہے۔ تو حروف بھی عمل کرتے ہیں، افعال بھی عمل کرتے ہیں، اسماء بھی عمل کرتے ہیں۔ اب سب کو بالترتیب یہاں سے بیان کریں گے کہ یہ حروف میں یہ عمل کرتے ہیں اور اس کا عمل یہ ہے، اس کا عمل یہ ہے، اس کا عمل یہ ہے، اور افعال میں یہ فعل ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ یہ عمل کرتے ہیں۔ وہ اسماء میں یہ اسماء ہیں، یہ فلاں اسم یہ عمل کرتا ہے، فلاں اسم وہ عمل کرتا ہے، سب کو بھی تفصیل یہاں سے اب بیان کریں گے۔ تو کہ صاحب کتاب فرماتے ہیں لفظی یعنی عوامل لفظی تین قسم پر ہے، حروف افعال اسماء و ایرا درس باب یاد کنیم، اور ان کو تین باب میں بیان کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہم تین باب میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی حروف کو ایک باب میں، افعال کو ایک باب میں، اسماء کو ایک باب میں، تو تین باب میں تینوں چیزوں کو بیان کریں گے۔ یعنی عوامل لفظی کی جو تین قسمیں ہیں، حروف افعال اسماء، ان تینوں قسموں کو تین ابواب میں بیان کریں گے۔ فرماتے باب اول در حروف عاملہ و درو دو فصل است، کہہ رہے کہ باب اول حروف عاملہ کے بیان میں، اور اس میں دو فصلیں ہیں، اس میں باب اول عمل کرنے والے حروف کے بارے میں، باب اول در حروف عاملہ و درو دو فصل است۔ باب اول اب پہلی فصلوں کو بیان کر رہے ہیں باب اول کی۔ فصل اول، پہلی فصل، در حروف عاملہ در اسم میں عمل کرنے والے حروف کے بارے میں۔ باب اول جو حروف عاملہ کے بیان میں، اس میں جو دو فصل ہے، پہلی فصل جو ہے اسم میں عمل کرنے والے حروف کے بارے میں، کیونکہ کچھ حروف جو اسم پر عمل کرتے ہیں، کچھ حروف جو ہے فعل پر عمل کرتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے یہاں پہ کہا کہ فصل اول در حروف عاملہ در اسم، پہلی فصل اسم میں عمل کرنے والے حروف کے بارے میں۔ وہاں پنج قسمت، اور وہ پانچ قسمیں ہیں،
कौन? इसम में अमल करने वाले हुरूफ की 5 किस्में हैं। समझ रहे हैं? इसमें में अमल करने वाले हुरूफ की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में की हैं। तो 5 किस्में के हुरूफ जो है इसमें में अमल करते हैं, वो क्या है उसको भी तफसील बयान कर रहे हैं। याद रखने की बात है कि अवामिल लफ्ज़ी 3 किस्में पर है, समझे ना? हुरूफ, अफ़ाल, अस्मा। फिर इनको 3 बाब में बयान किया। बाब अव्वल फिर हुरूफ आमिला के बयान में, उसमें 2 फसल है। फसल अव्वल पर इसमें में अमल करने वाले हुरूफ के बारे में, और फसल दोम का बयान बाद में आएगा, वो फेल में अमल करने वाले हुरूफ का बयान होगा। वो 5 किस्में। किस्म अव्वल हुरूफ जर, इसमें में अमल करने वाले हुरूफ की जो 5 किस्में हैं, उनमें से पहली किस्म किसके बारे में है? हुरूफ जर। वहाँ हफ्तादास, और वो 17 हैं। हुरूफ जर कितने हैं? 17 हैं। किसके? आने बाबे अव्वल हुरूफ आमिला के बयान में, उसमें 2 फसल। पहली फसल इसमें में अमल करने वाले हुरूफ के बारे में, और इसमें में अमल करने वाले हुरूफ की 5 किस्में हैं। पहली किस्म हुरूफ जार्रा के बारे में है, और वो 17 हैं। क्या क्या है वो 17? तो फरमाते हैं बा व मिन व इला, जो आपने मिनहाजुल अरबिया वगैरह में पढ़ा था, बिल किताबे अलल अरबे इलल बैते इलल मदरसते, और फिल बैते फिल मदरसते। तो ये फी, इला, बा, ये सब को क्या कहते हैं? लाम वगैरह, ये सब को हुरूफ जार्रा कहते हैं। समझ रहे? इन हुरूफ का अमल क्या है वो आगे बताएंगे। तो वो 17 हुरूफ कौन कौन है समझे नहीं, जो हुरूफ जर कहलाते हैं? तो फरमाते हैं बा व मिन व इला व हत्ता व फी व लाम व रुब्बा व वावे किस्म व वावे कसम व ताए कसम व अन व आला व काफ तशबीह व मुज व मुनजो व हशा व खला व आदा। ये 17 हुरूफ हैं। ये 17, इन 17 हुरूफ को क्या कहते हैं? हुरूफ जार्रा कहते हैं। आगे बताते हैं कि ये हुरूफ किस पर दाखिल होते हैं, किस पर आते हैं। तो फरमाते हैं ई हुरूफ दर इसम रवन, ये हुरूफ इसम में दाखिल होते हैं, इसम पर आते हैं। कौन हुरूफ? यही हुरूफ जार्रा जो 17 हैं, जिनका बयान अभी हुआ, ये इसम में दाखिल होते हैं, आते व आखिरश रब जर कुनन, और इसम के आखिर को जर करते हैं। इसमें के आखिर को क्या करते हैं? जर करते हैं। जैसा कि अलमालुल ले ज़ैदिन, लाम की मिसाल, एक ही मिसाल दी है, समझे कि नहीं? इसी तरह आपने कहा कि जलस्तु फिल बैते, समझे नहीं कि नहीं? और क्या जो कहते हैं जलस्तु अलल फर्श, समझे कि नहीं? इस तरह आप बोल सकते हैं। एक ही मिसाल दिए हैं, बाकी को खुद बखुद मिसाल बना सकते हैं। फिर इन्हीं 17 हुरूफ जो हुरूफ जार्रा कहलाते हैं, इनका यहाँ पे तफसीली बयान तो नहीं है, बल्कि इन हुरूफ को गिनाने के बाद और इसका अमल भी बता दिए हैं कि ये हुरूफ इसमें पर दाखिल होते हैं, फेल पर नहीं। ये याद रखना, इसमें पर दाखिल होते हैं, फेल पर नहीं। और इसमें के आखिर को क्या करते हैं? जर करते हैं। जर का मतलब कसरा देते हैं। अब अलमालुल ज़ैदिन एक मिसाल दी है, सबकी मिसालें नहीं दी है। ये सबकी मिसालें और किस्में जो है, इन हुरूफ की किस्में भी है, वो आगे चल वगैरह हमें पढ़ेंगे। तो ये 17 हुरूफ आपको ये याद रखना है कि अवामिल इराब की कितनी किस्में हैं। फिर उनमें से अवामिल लफ्ज़ी, अवामिल मानवी है, अवामिल लफ्ज़ी की कितनी किस्में हैं वो फिर याद करना है। फिर पहली किस्म जो हुरूफ आमिला बाब अव्वल है, वो हुरूफ आमिला के बयान में है, और हुरूफ आमिला के बयान में उसमें कितनी फसलें वो भी याद रहे कि 2 फसलें हैं। पहली फसल क्या है? इसमें में अमल करने वाले हुरूफ के बारे में। फिर उसकी कितनी किस्में हैं? उसकी 5 किस्में हैं। फिर उन 5 किस्मों में से पहली किस्म क्या है? वो है हुरूफ जार्रा। किस्म क्या है इसे देखिए, फरमाते हैं दोम, इसमें में अमल करने वाले हुरूफ की दूसरी किस्म हुरूफ मुशब्बा बिलफेल। हुरूफ मुशब्बा बिलफेल, हुरूफ मुशब्बा बिलफेल का मतलब क्या है? यानी वो हुरूफ जो फेल से मुशाबिहत रखता है, किस मामले में? माने में नहीं, बल्कि शक्लो सूरत में। समझ रहे कि नहीं? शक्लो सूरत में हुरूफ जो फेल के मुशाबे हैं उसको हुरूफ मुशब्बा बिलफेल कहते हैं। वहाँ शश अस, और वो 6 हैं। और वो कितने हैं? 6 हैं। इन्ना व अन्ना व अन्ना व लाकिन्ना व लैता व लाल्ला। कितने हैं? इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लाल्ला। ये इन्ना जो है, जिस तरह फेल जो है फिर्रा है, इसी तरह इन्ना है। अन्ना है जैसा कि
मर्रा है, समझे, फर्रा है, कान्ना है, जैसे कि फालना है, लाकिन्ना है, जारिबना है, समझे कि नहीं। तो ये सब जो है हरूफ में, शक्ल सूरत में, वजन में फेल के होने की वजह से, इसीलिए इन हरूफ को हरूफ मुशब्बह बिल फेल कहा है। तो ये हरूफ 6 हैं और ये इस्म में अमल करने वाले हरूफ की दूसरी किस्म के हरूफ हैं। अब इन हरूफ का अमल क्या है, फरमाते हैं ये हरूफ रा इस्म बायत मनसूब व खबर मरफू, कह रहे हैं कि ये हरूफ इस्म को मनसूब चाहते हैं और खबर को मरफू, यानी ये हरूफ इस्म को क्या करते हैं, नसब, और खबर को रफा। खबर को क्या, यानी जुमला इस्मिया पर दाखिल होगा, जुमला इस्मिया पर दाखिल होगा, यानी जो मुब्तदा होगा उसको ये नसब करेंगे ये हरूफ। और कौन ऐसा कर रहा है, रहा था कि ये हरूफ इस्म को नसब और खबर को रफा करते हैं, इस्म को नसब खबर को रफा करते हैं। जैसा कि इन्ना ज़ैदन कायमुन, इन्ना ज़ैदन कायमुन, इन्ना ज़ैदन कायमुन, बेशक ज़ैद खड़ा है, बेशक ज़ैद खड़ा है। तो अब देखिए इन्ना ने ज़ैद को क्या किया, नसब किया, इन्ना ने ज़ैद को क्या किया, नसब किया। और जो खबर है कायमुन, ये कायमुन को जो रफा आया ये इन्ना की वजह से, और ये इन्ना की खबर है। तो और ज़ैदुल कायमुन एक जुमला था, अब उस पर तुमने इन्ना को दाखिल किया। जब इन्ना को आपने दाखिल किया तो अब उसने क्या अमल किया, जो मुब्तदा था, समझे कि नहीं, जो मुब्तदा था उसको इसने नसब किया, और जो खबर कायमुन है उस पर रफा, समझ रहे हैं। तो इन हरूफ का अमल यही है कि इस्म को नसब और खबर को, इस्म को नसब का मतलब यानी जो इस्म मुब्तदा हो, समझ रहे हैं, उसको जो है क्या करते हैं, नसब करते हैं, और खबर को रफा। ठीक, आगे फरमाते हैं अब इसकी तरकीबी पोजीशन, इन्ना ज़ैदन कायमुन, इन्ना ज़ैदन कायमुन की तरकीबी हालत बता रहे हैं नह की ज़बान में। फरमाते हैं ज़ैदरा इसमें इन्ना गोयन, ज़ैद को इस्म का, इन्ना का इस्म कहते हैं, ज़ैद को क्या कहते हैं, ज़ैद को इन्ना का इस्म कहते हैं। और वह कायमुन रा खबर इन्ना, और कायमुन को इन्ना की खबर कहते हैं, कायमुन को क्या कहते हैं, इन्ना की खबर, समझ रहे हैं। तो इसकी तरकीब यही होगी कि इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल, ज़ैदन उसका इस्म, कायमुन उसकी खबर। और आगे फरमाते हैं विदा के इन्ना व अन्ना हुरूफ तहक़ीक़ अस्त, जान लीजिए कि इन्ना और अन्ना हुरूफ तहक़ीक़ है, मामले की तहक़ीक़ के लिए आता है, ताकीद के लिए लाते हैं, समझे कि नहीं। आप एक तो ऐसे भी कह सकते हैं ज़ैदुन कायमुन, ज़ैद खड़ा है, लेकिन जब इन्ना लगा देंगे तो तहक़ीक़ के साथ, यानी बेशक ज़ैद खड़ा है, समझ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा ताकीद है। तो इन हुरूफ के तमाम यहाँ पे तो एक ही मिसाल दिए हैं, एक ही मिसाल आप देख रहे हैं, बाकी चीज़ों की मिसालें नहीं हैं, वो खुद बना भी सकते हैं। और आगे की किताबें जो आएंगी यानी शरमियात व आमिल हिदायत नौ वगैरह में आप इन सब हुरूफ की अलग अलग मिसालें पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही आप याद रखें। बताया था कि अवामिल इराब दो किस्म पर है, लफ्ज़